Hello everyone, welcome back to my channel Management E-Learning. Today I am going to explain you the changing nature of workforce. Okay, so what do you mean the workforce? The place where we are working, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, organization हुआ, company हुआ, that place is called the workforce. And what is the changing nature means? That means influencing factor, the factor which influence our workforce. Okay, so we will see what factor influence our workplace. These 5 global trends that are affecting the changing nature of work and how HR professional need to approach this trend. There is lots of factor which influence our workforce. बहुत सारा फैक्टर है, बहुत सारा एक्सटर्नल इंटरनल कंपोनेंट है जो हमारी वर्कफोर्स को इन्फ्लुएंस करता है और HR प्रोफेशनल जो है वो फोर्स को अप्रोच करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रैटेजी पॉलिसी बनाते हैं. सो we categorize the all factor into the 5 category. Okay, that is global trend, technological trend, demographic and diversity, outsourcing and changing worker attitude and value. One more diagram is there, जो भी आपको easy लगे you can choose. So one by one we will see. First one is the globalization trend. Okay, so how globalization trend change the nature of workforce, or we will see the impact of globalization on HRM. Strategic human resource management is the main concern of the manager who are expanding their business at global level. Okay, the globalization, what do you mean by globalization? Globalization refers to the tendency of firm to extend their sale, ownership, manufacturing to new market abroad. More globalization means more competition, and more competition means more pressure to lower cost and make the employee more productive. So what do you mean by globalization? Here we expanding our business to globally, that means globalization. So due to globalization, what changes come in workforce? ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या चेंजेस आता है वर्कफोर्स में, क्या इम्पैक्ट आता है? तो हियर इज द नंबर ऑफ इम्पैक्ट. फर्स्ट वन, मैनेजिंग द स्टाफ इन द क्रॉस बॉर्डर. हियर वी विल सी ऑल द इम्पैक्ट, एवरीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ HRM. हियर आवर रिसोर्स इज ह्यूमन रिसोर्स. ओके, मैन पावर. सो फर्स्ट वन इज द मैनेजिंग स्टाफ इन क्रॉस बॉर्डर. How due to globalization there is we are doing business globally. So here is the main concern of HR is how they manage their staff overseas or globally. Second one is need to develop effective international manager. How HR department help to develop the effective international manager who handle the diversity of work team. Third one is need to develop policy and practice for different location. Yes, according to country rules, according to location, HR have to develop their policy and practice. Fourth one is managing cultural diversity. Due to globalization, our employee have the dense whose diversity amongst them. So how HR manage this diversity. And developing foreign culture and work practice training program. Due to globalization, here the HR have to develop the foreign culture and the training program according to their global demand. Last one is developing compensation plan for overseas. According to country, according to location, compensation plan is HR develop their compensation plan according to their country, according to location. Okay, so these are the factors, these are the some point which come under the globalization, how globalization affect the changing nature of workforce. ठीक है,
यहाँ पे ये सारा जो पॉइंट्स है वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन बताता है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन वर्किंग नेचर को चेंज कर रहा है। तो वर्किंग नेचर क्या हुआ, जहाँ ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं, जहाँ पे वर्क करते हैं, और चेंजिंग नेचर ऑफ चेंजिंग क्या हो गया, फैक्टर इंटरनल या एक्सटर्नल जो वर्किंग प्लेस को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो फर्स्ट वन इज आवर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या आएगा, यहाँ पे HR डिपार्टमेंट को मैनेज करना होता है उनके एम्प्लॉय को कि वो कैसे ग्लोबली वर्क करेंगे। मैनेजिंग के अंदर उनको प्लानिंग करना होता है, स्टाफिंग करना होता है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो बेसिक 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैनेजिंग के अंदर आता है, जहाँ पे वो अपने स्टाफ को मैनेज करते हैं कि वो क्रॉस बॉर्डर कैसे वर्क करेंगे। सेकेंड क्या हो गया कि हम अपने जो मैनेजर को कैसे डेवलप करें, कैसे उनको कैसे उनका स्किल डेवलप करें कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट, इंटरनेशनल टीम को हैंडल कर सकें। थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू कंट्री पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, हमें अपने HR प्रैक्टिस और पॉलिसी में चेंजेस करना होता है उनके अकॉर्डिंग। जैसे आपका वर्किंग आवर, लीव, आपका हॉलीडे, दिस ऑल प्लानिंग अकॉर्डिंग टू लोकेशन और कंट्री बेस्ड डिसीजन। ओके, कंट्री के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग हमें पॉलिसी और प्रैक्टिस में चेंज करना होता है। देन फोर्थ वन इज मैनेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। अब ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबली पीपल आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ग्लोबल है, तो उनके अंदर जो जहाँ से वो आ रहे हैं उनका कल्चर भी डिफरेंट होगा। सो HR डिपार्टमेंट का बिग कंसर्न हो जाता है कि हाउ दे मैनेजिंग दी कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, फिर हमें HR डिपार्टमेंट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमें ग्लोबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है, जिसमें हमारे फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन कल्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये सब भी हम लोग ट्रेनिंग के थ्रू देते हैं। देन डेवलपिंग द कंपनसेशन प्लान फॉर ओवरसी, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू कंट्री, हमारा जो कंपनसेशन प्लान होता है वो डिफरेंट होता है। इसके अंदर हाउसिंग अलाउंस, हेल्थ अलाउंस, अदर बेनिफिट, वो सारा डिफरेंट आता है। सेकेंड फैक्टर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो हाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इम्पैक्ट द HR डिपार्टमेंट और इन्फ्लुएंस द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्कफोर्स। ओके, चलो देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द HR डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। It allows the company to improve its internal process, core competency, relevant market, and organizational structure as whole. This will lead to greater efficiency and effectiveness of the human resource. यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आया है, इनोवेशन आया है, उसकी वजह से ह्यूज इम्पैक्ट हो रहा है हमारे HR डिपार्टमेंट में। हमारा जो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस है, कोर कॉम्पिटेंसी है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, जैसे हम काम करते हैं, वो सब चेंज हो गया है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और ये जब से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ है और हम लोग टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं, तब से हमारा क्या हो रहा है, बिजनेस भी इम्प्रूव हो रहा है। ये क्यों टेक्नोलॉजी हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन बिजनेस। ओके, the evaluation of technology has had a significant impact on the operation of human resource department and also reconstruct the how people communicate. Okay, for example, for instance, the internet has taken over the advertising, as seen today majority of jobs are now advertised online, cutting out the cultural recruiting way of using HR personnel. So due to technology, due to EHRM, हमारा जो जॉब एडवर्टीजमेंट होता है वो हम लोग मोस्टली थ्रू ऑनलाइन हम लोग देखते हैं। बहुत सारा जॉब पोर्टल है, लिंक्डइन है, सोशल मीडिया है, उसके थ्रू हम लोग
यस उसके थ्रू हम लोग जॉब एडवर्टीजमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं. सो पहले हम लोग क्या करते थे, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर वैकेंसी, ऐसे ट्रेडिशनल वे में करते थे. बट अभी क्या हो गया है, डिजिटल हो गया है. और वी आर यूजिंग दी टेक्नोलॉजी फॉर रिक्रूटमेंट और अदर HR practice. So here is the example. HR tools migrate to cloud. Cloud-based HR tools will help increasing the accessibility of HR technology, giving all members on the team a possibility to access the relevant workplace data anytime. अभी बहुत सारा हम लोग के पास सॉफ्टवेयर आ गया है, क्लाउड बेस्ड HR टूल आ गया है, जिसके जो HR का जो प्रोसेस है, जो HR में हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, देन एनालाइज करते हैं, ये सारा बहुत सारा वर्क बहुत ईजिली और इफ़िशिएंटली वे में ड्यू टू टेक्नोलॉजी हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कैसे हेल्प करता है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर ड्यूरिंग द डेटा इनपुट प्रोसेस, reduce the overhead for handling day-to-day assignment, save the business time and money, and are more flexible and easier to update. Okay, so here are the some example of technological advancement in HR. So first one is the human resource information system. क्या होता है ये, what do you mean by human resource information system? A computer system used to acquire, store, manipulate, analyze and retrieve and distribute the information related to human resource. कंप्यूटर सिस्टम जहाँ पे हम लोग डेटा को एक्वायर करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंफॉर्मेशन को रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स. EHRM, that is the digitalization of HR. Then another one, the people analytical tools, biometric time tracking, HR tools migrate to cloud, and harassment reporting tools. So these are the some tools, some technological advancement system which come under the HR department. HR department ये सारा tools, HRIS, EHRM, बायोमेट्रिक टाइम ट्रैकिंग जो पंचिंग होता है हमारा, HR टूल माइग्रेट टू क्लाउड फॉर HR फंक्शन, और हेरासमेंट रिपोर्टिंग टूल जहाँ पे अगर कुछ हेरासमेंट होता है तो हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पे उस पर कंप्लेन कर सकते हैं. ओके, दिस आर सम HR सॉफ्टवेयर फीचर. HR प्रैक्टिस के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनता है उसमें क्या फीचर्स होना चाहिए. देन अटेंडेंस लीव का होता है, पेरोल, रिक्रूटमेंट, onboarding, performance management, talent management, training and development. So this all the practice of HR come under the HR software. So ये सब क्यों हो रहा है, due to the technological advancement. Okay. Third point is outsourcing. Outsourcing क्या होता है? Outsourcing is the business practice of hiring a party outside a company to perform service and create goods that traditionally were performed in-house by the company's own employee and staff. Outsourcing is a practice usually undertaken by companies as a cost-cutting measure. Human resource outsourcing is a process in which a company utilizes the service of third party to take care of its HR function. So बेसिकली आउटसोर्सिंग क्या है, आउटसोर्सिंग में हम लोग जो बिजनेस है हमारा वो क्या करती है, हायर करती है थर्ड पार्टी को और उनको कुछ पार्ट ऑफ वर्क उनको देती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वो कॉन्ट्रैक्ट करती है थर्ड पार्टी से, ये एग्रीमेंट बनाती है, साइन करती है और अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट वो HR का कुछ फंक्शन लाइक रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कुछ फंक्शन वो आउटसोर्स करती है, वो थर्ड पार्टी को बोलती है कि आप मेरे लिए ये फंक्शन करके दो. सो ये क्यों करती है, टू कट कॉस्ट कटिंग के लिए, मोर इफिशिएंसी, मोर इफेक्टिव रिजल्ट के लिए. ओके, सो इट्स क्लियर. आउटसोर्सिंग क्या हुआ, आउटसोर्सिंग थर्ड पार्टी है जो कंपनी हायर करती है, उसकी सर्विस को हायर करती है और HR
क्या करती है, कुछ फंक्शन में भी रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, पेरोल सिस्टम हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, तो वो हायर करेगी कंपनी को, और वो कंपनी जो थर्ड पार्टी है वो कंपनी के लिए वर्क करेगा और उनको वो फंक्शन जो भी है करके वो उनको देगा। ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, एग्रीमेंट के थ्रू होता है। सो HR फंक्शन दैट आर मोस्ट कॉमनली आउटसोर्स आर रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, बैकग्राउंड चेक। या बैकग्राउंड चेक में हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय अगर हम लोग हायर कर लिए हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया है हमारा, हायर कर लिए हैं, सिलेक्शन हो गया है, तो वो हमारा जो एम्प्लॉय का बैकग्राउंड है, उनका एजुकेशनल फील्ड, एड्रेस, जो उनका बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड है उनका, उसको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं कि जो उन्होंने जो भी जॉब एक्सपीरियंस दिया है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट दिया है, दैट इज़ करेक्ट और नॉट। तो इसकी भी थर्ड पार्टी एजेंसी है, वो बहुत सारे क्लाइंट का करती है और एग्रीमेंट बेस पे करती है। देन पेरोल, कोचिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दिस ऑल फंक्शन, most of HR फंक्शन we can do through outsourcing। ठीक है, क्या एडवांटेज है आउटसोर्सिंग का, तो ये कम्युनिकेशन चैनल है, टैलेंट सप्लाई ट्रेंड है, कॉस्ट कटिंग करती है, टाइम रिड्यूस करती है, इफेक्टिव रिजल्ट देती है। ओके, फोर्थ वन इज डेमोग्राफिक एंड डाइवर्सिटी। सो हाउ डेमोग्राफिक एंड डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस आवर वर्क प्लेस। The workplace diversity affect the development of interpersonal relationship, affect human resource function such as record keeping, training, recruiting requirement for HR expertise। So basically यहाँ पे demographic क्या है और diversity क्या है, पहले ये समझते हैं। Diversity जो हमारा cultural है, जो हमारा value है, attitude है, belief है, opinion है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है कि किसी भी दो पर्सन का हमारा बिलीव नहीं मिलता है, एटीट्यूड नहीं मिलता है, तो जब हमारा वर्क प्लेस है वहाँ तो ह्यूज नंबर ऑफ वर्क एम्प्लॉय आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, टीम में काम करते हैं, तो उनकी जो वैल्यूज़ है, उनकी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स वर्क, टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स एनीथिंग, वो डिफरेंट होती है, बिलीव डिफरेंट होती है, ओपिनियन डिफरेंट होती है। तो HR उसको कैसे मैनेज करेगा। ओके, डेमोग्राफिक दैट मीन्स द एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, फैमिली लाइफ साइकिल, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ड्यू टू डेमोग्राफिक सेगमेंट, वो उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका स्टेटस क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसके डेमोग्राफिक सेगमेंट के भी अकॉर्डिंग उनका एटीट्यूड, ओपिनियन, वैल्यू, ये सब चेंज होता है। तो HR डिपार्टमेंट का मेन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। सो this is the demographic and diversity is the important factor which influence the HR department। यहाँ पे HR मैनेजर जो है, HR एक्सपर्ट जो है, वो इस चीज़ को, डेमोग्राफिक और डाइवर्सिटी को एनालाइज करते हैं, उनको कैसे मोर प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना है, कैसे एटीट्यूड चेंज करना है, एम्प्लॉय को कैसे ट्रेनिंग देना है। सो वो इसके अकॉर्डिंग स्टडी करके स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। Diversity refer to the way in which people are similar or different from each other. It may be defined by any characteristic that varies within a particular work unit, such as the gender, race, age, education, functional background. Understanding how this characteristic shape the organizational behavior is important. Yes, so how this characteristic shape the organizational behavior is very important for HR department. Okay, here are the some HRM policy which based on the diversity or demographic, like Equal Employment Opportunity Commission, the Age Discrimination Act, Child Labor Act. Yes, so lots of policy come under this factor. Fifth one is the changing worker attitude and value.
An attitude refer to our opinion, belief, feelings about the aspect of our environment. We have the attitude towards the food we eat, people we interact with. ओके, एटीट्यूड क्या है? हमारा ओपिनियन है, बिलीव है, फीलिंग है, हमारे एटीट्यूड, हमारे फूड क्या हम खाते हैं उसमें भी चेंज दिखता है, पीपल से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसमें हमारा एटीट्यूड दिखता है. तो व्हाट डू यू मीन बाय द एटीट्यूड एट वर्क? तो ये पॉजिटिव और निगेटिव टू वे से हो सकता है. द टू पर्टिकुलर जॉब एटीट्यूड हैव द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस हाउ वी बिहेव. और एटीट्यूड कैसे, मतलब कैसे वर्क के लिए हम एटीट्यूड करते हैं, बिहेव करते हैं, बिलीव क्या है हमारा, फीलिंग्स क्या है हमारा वर्क के लिए. तो ये हमारा दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है. दैट इज़ द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है? द पीपल हैव फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर जॉब. वो सेटिस्फाई है कि नहीं, वो सेल्फ मोटिवेटेड है कि नहीं अपने जॉब को लेके. अगर वो जॉब सेटिस्फैक्शन है, उनको सेल्फ मोटिवेटेड है, तो उनका जो वर्क के लिए एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा. सेकेंड फैक्टर इज द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. हाउ पीपल्स आर इमोशनली अटैच टुवर्ड्स द कंपनी वेयर दे वर्क. कैसे वो इमोशनली कंपनी से अटैच हैं वर्क के लिए. दैट इज द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डेवलपिंग द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय. ओके, सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द वर्किंग नेचर ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क फोर्स. ओके, तो ये हम लोग इस सेशन में हम लोगों ने देखा कि चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क फोर्स कैसे होता है, कौन कौन सी फैक्टर हैं इसके अंदर और हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग, और एचआर डिपार्टमेंट को, एचआर मैनेजर को कैसे इसको अप्रोच करना है, सॉल्व करना है और एचआर प्रैक्टिस को इफेक्टिव बनाना है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. आपको एचआर से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. अगर कोई टॉपिक है जो आप मुझसे लेक्चर लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए. और आपको नोट्स चाहिए तो मुझे मेल कीजिए, मैं आपको कंप्लीट ई बुक नोट्स सब प्रोवाइड करूँगी. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.